स्वागतम अमित जी स्वागतम अमित शाह स्वागतम अमित जी स्वागतम अमित जी स्वागतम বাংলার সংস্কৃতিতে লাগবে अमित शाह जी स्वागतम জুড়ে জয়ধ্বনি উঠবে अमित शाह जी स्वागतम তাই পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার চাই বিজেপি সরকার অনুপ্রবেশ রুখতে হবে বাংলা হবে বাঁচবে আধার কার্ডের চুরিও এই ছেলেরা রুখবে সীমান্তের হিন্দুদের বা বুকে আগলে রাখবো 15 বছর কেঁদেছি অনেক এবার মোরা আসবো ভোটের দিনে ছাপ্পারি কি চলবে না তো अमित जी स्वागतम अमित जी स्वागतम দরকার চাই বিজেপি अमित সরকার जी स्वागतम দরকার চাই বিজেপি সরকার स्वागतम এবার মোদি জি মা ভরসা তুমি রাখো অনাচার আর থাকবে আচ্ছা হাটের তলায় লুকিয়ে রাখা কালো টাকার পাহাড় প্রতিবাদ করলে বলে বিরোধী ধরে মার সব দুঃখ ঘোচাতে হবে সইব না তো মাননীয় অমিত শাহজি এক্ষুনি আমাদের এই স্টেজে তাই পাল্টানো প্রদর্শন করবেন সবাইকে বলবো অমিত শাহজি স্বাগতম চাই বিজেপি সরকার অমিত শাহজি স্বাগতম নামাবো ভুলিনি মোরা কে অমিত শাহজি স্বাগতম বললো শিশু তামান্নাতে হো অমিত শাহজি স্বাগতম বদনাম করলেন তিনি অমিত শাহজি স্বাগতম ধর্ষকদেরও চিনি অমিত শাহজি জিন্দাবাদ আর পাবে না ছাড় অমিত শাহজি জিন্দাবাদ তাই অমিত শাহজি জিন্দাবাদ বিজেপি সরকার অমিত শাহজি জিন্দাবাদ বিজেপি সরকার অমিত শাহজি জিন্দাবাদ হবে বাঁচবে আধার কার্ডের চুরিও এই ছেলেরা রুখবে সীমান্তের হিন্দুদের বা বুকে আগলে রাখবো 15 বছর কেঁদেছি অনেক এবার মোরা হাসবো সবাইকে বলবো ছাপ্পারি কি চলবে না মোবাইলে লাইভ সবাই আপনারা সবাই মোবাইলের লাইভগুলো সবাই দেখাতে থাকুন অমিত শাহজি স্বাগতম অমিত শাহজি স্বাগতম তুমি রাখো অনাচার আর চিনতে থাকো অমিত শাহজি স্বাগতম এই ধুলিসাৎ অমিত শাহজি মোদিজির প্রহার যখন স্বাগতম। করবে বাজিমা অমিত শাহজি স্বাগতম। অমিত শাহজি স্বাগতম অমিত শাহজি স্বাগতম অমিত শাহজি স্বাগতম অমিত শাহজি স্বাগতম ভুলিনি মোরা কে হো অমিত শাহজি স্বাগতম শিশু তামান্নাতে হো অমিত শাহজি জিন্দাবাদ বদনাম করলেন তিনি অমিত শাহজি জিন্দাবাদ ধর্ষকদেরও চিনি অমিত শাহজি জিন্দাবাদ আর পাবে না মোবাইলের লাইভগুলো দয়া করে আরো তুলুন অনেকে করেন মোবাইলের লাইভ চাই বিজেপি আপনাদেরকে বলবো মোবাইলের লাইভগুলো চাই বিজেপি সরকার অমিত শাহজি জিন্দাবাদ হবে বাংলা হবে বাঁচবে অমিত শাহজি জিন্দাবাদ চুরিও এই ছেলেরা রুখবে অমিত শাহজি জিন্দাবাদ হিন্দুদের বা বুকে আগলে অমিত রাখবো শাহজি জিন্দাবাদ 15 বছর কেঁদেছি অনেক এবার মোরা অমিত শাহজি স্বাগতম ছাপ্পারি কি চলবে না অমিত শাহজি স্বাগতম অমিত শাহজি স্বাগতম দরকার চাই অমিত শাহজি স্বাগতম দরকার চাই অমিত শাহজি স্বাগতম এবার মোদি জি মা অমিত শাহজি স্বাগতম অনাচার আর থাকবে না মা অমিত শাহজি স্বাগতম তোলাবাজি চোরা চালান হবে ধুলিসাৎ মোদি ধন্যবাদ। প্রহার যখন করবে বাজিমা রূপসী মা ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে ওনার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছে আমি একই সঙ্গে আমাদের প্রদেশ সভাপতি মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয় এবং মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহোদয়কেও স্বাগত জানাচ্ছি
আমি এবার মাননীয় অমিত শাহজিকে স্বাগত জানানোর জন্য মাননীয় রাজ্য সভাপতিকে রজনীগন্ধার মালা এবং আমাদের নৈহাটির বিখ্যাত বড় মায়ের এক চিত্র দিয়ে সম্মানীয় শ্রমিকদা অমিতজিকে স্বাগত জানাবেন, সম্বর্ধিত করবেন। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित जी स्वागतम, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम। এবার মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহোদয় জুটের অঙ্গবস্ত্র দিয়ে উত্তরীয় দিয়ে সম্মানীয় অমিত শাহজিকে ব্যারাকপুরের কালচার জুটের অঙ্গবস্ত্র দিয়ে উনি স্বাগত জানালেন। এবার মাননীয় শুভেন্দুদা আমাদের ব্যারাকপুরের প্রাণপুরুষ মঙ্গল পাণ্ডে, সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক শহীদ মঙ্গল পাণ্ডের তৈলচিত্র দিয়ে ওনাকে স্বাগত জানালেন। এবার আমি আমাদের সম্মানীয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মহোদয়কে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। भारत माता के, भारत माता के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। আজকের এই কার্যকর্তা সম্মেলন উত্তর 24 পরগনা বিভাগের বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির এই বিভাগের দেবতুল্য কার্যকর্তাদের বয়স অনুযায়ী প্রণাম, শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা, সম্মান জ্ঞাপন করি। আমরা সবাই উপবিষ্ট হয়েছে ভারতবর্ষের ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম শীর্ষ নেতা, প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি, ভারত সরকারের লোকপ্রিয় শক্তিশালী স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী, যিনি নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ করে কাশ্মীর থেকে 370 এবং 35-এর এ হটিয়েছেন, যিনি পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তকে সুরক্ষিত করার জন্য প্রতিনিয়ত অঙ্গীকারবদ্ধ যশস্বী নেতা শ্রী অমিত শাহজিকে আমি শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানাই। মঞ্চে আমাদের রাজ্যের সভাপতি, সাংসদ, আমাদের সকলের প্রিয় নেতা শ্রমিক ভট্টাচার্য আছেন ভারত সরকারের অন্যতম রাষ্ট্রমন্ত্রী, বনগাঁর লোকপ্রিয় বিধায়ক, মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক মাননীয় শান্তনু ঠাকুর এবং সম্মানিত মঞ্চ। আমরা বক্তব্য রাখব না, কারণ প্রতিদিনই আমরা বলি এই বিভাগে ইতিমধ্যে 7টি পরিবর্তন সংকল্প সভাতে আমি অংশগ্রহণ করেছি। আজকে আমাদের নেতার নির্দেশ আমরা নেব, আমরা দায়িত্বশীল কার্যকর্তা, সেই নির্দেশ নিয়ে আগামী দিনে মেরা বুথ সবসে মজবুত, মেরা বুথ সবসে মজবুত, মেরা বুথ সবসে মজবুত, আমরা প্রত্যেকটি বুথে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জেতাবো। আমাদের যশস্বী নেতা, বিশ্বের লোকপ্রিয় নেতা নরেন্দ্র মোদীজি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 6টি
পরিবর্তন সংকল্প সভায় এই বাংলার হিত গৌরব ফেরানোর কথা বলেছেন। আমাদের সে কাজ করতে হবে। তাই আমি একটা কথাই বলবো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস বিশেষ করে এই এলাকাতে সনাতনী হিন্দুদের বিভক্ত করার জন্য কখনো জাতের নামে, কখনো ভাষার নামে আমাদের বিভক্ত করতে চায়। কিন্তু আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেসকে কখনো বলতে শুনবেন না যে আমডাঙ্গার মুসলমানরা তারা বাংলাতে কথা বলে, টিটাগড়ের মুসলমানরা হিন্দিতে কথা বলে। তাই এবারের নির্বাচনে ভাষার নামে, জাতের নামে যারা ভারতীয় সংস্কৃতি, সনাতন সংস্কৃতিকে আমরা রক্ষা করতে চাই, তারা ঐক্যবদ্ধ থাকব, বিভক্ত হব না। পশ্চিমবঙ্গকে গ্রেটার বাংলাদেশ হতে দেব না, পশ্চিমবঙ্গকে জেহাদিদের হাতে যেতে দেব না, পশ্চিমবঙ্গকে মৌলবাদীদের হাতে যেতে দেব না, পশ্চিমবঙ্গকে জামাতিদের হাতে যেতে দেব না। এটাই আমাদের অঙ্গীকার, এটাই আমাদের শপথ। তাই মোদের নেতার নাম নরেন্দ্র মোদী, আমাদের প্রতীক পদ্ম, জয় আমাদের লক্ষ্য, পরিবর্তন আমাদের সংকল্প। সবাই বলুন, পাল্টানো দরকার, 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 পাল্টানো দরকার। সবাই ভালো থাকবেন, নো ভোট টু মমতা করবেন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহোদয়কে। এবার আমি আমাদের প্রিয় রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সম্মানীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহোদয়কে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। শ্রমিকদা, আজকের এই মঞ্চে উপস্থিত ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যার নেতৃত্বে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে, সেই শ্রদ্ধেয় অমিত শাহ, বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিমন্ত্রী শ্রী শান্তনু ঠাকুর, মঞ্চে উপস্থিত বিজেপির নেতৃবৃন্দ, সমস্ত বিধায়ক এবং আমাদের এই বিভাগের 4টি সাংগঠনিক জেলা থেকে আগত সমস্ত কর্মী বন্ধুরা, আমরা একটা নির্দিষ্ট বার্তা দিতে আপনাদের কাছে এসেছি। দেখুন, তৃণমূল কংগ্রেস আর নেই, তৃণমূল কংগ্রেস চলে গেছে, তৃণমূল কংগ্রেস চলে গেছে, তৃণমূল কংগ্রেস চলে যাবে। যেটা আছে সেটা লিভিং ফসিল, জীবন্ত জীবাশ্ম। কোনো লাঠি গুলির দরকার নেই, কোনো আক্রমণাত্মক শব্দের প্রয়োজন নেই। শুধু তৃণমূলকে দেখলে না বলে দিন না। তৃণমূল মানে না, নো মিন্স নো। তৃণমূলের এই অত্যাচার, তৃণমূলের এই একদলীয় একচোটে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সচেতন মানুষ উৎপাটিত করে দেবে। যতই করো হামলা, বিজেপি নেবে বাংলা। এর অন্যথা কোনো কিছু হবে না। কালের দেওয়াল লিখন সবাই পড়ে নিয়েছেন। ভারী শিল্প ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এই শিল্পাঞ্চলে নতুন করে শিল্প সম্ভাবনার পুনরুজ্জীবন চাই। এখানের জুট মিলের হাল ফেরানো চাই। তাদের কর্মীদের চোখের জলের হিসাব নেওয়া চাই। এটাই আজকে আমাদের একমাত্র বার্তা। আর একই সঙ্গে বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের 2200 কিলোমিটারের বেশি একটা বর্ডার আছে। এই উত্তর 24 পরগনার পাশ দিয়ে যে বাংলাদেশের বর্ডার চলে যাচ্ছে, শুধু একমাত্র বিএসএফ কে দিয়ে হিউম্যান ট্রাফিকিং বন্ধ করা সম্ভব নয়।
কেন্দ্র রাজ্যের যৌথ প্রচেষ্টা ছাড়া, রাজনৈতিক সহমত ছাড়া, জনসচেতনতা ছাড়া এই অনুপ্রবেশকে বন্ধ করা যাবে না। তাই আমার আবেদন প্রত্যেকটা জেলার বাসীর কাছে, প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী মুসলমানের কাছে, যারা দেশটাকে নিজের দেশ বলে মনে করেন, আপনাদেরও রুজি রুটির ওপরে হাত বসাচ্ছে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীরা, যারা একদিন এই দেশকে নাপাক বলে, অপবিত্র বলে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, যারা কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিয়েছিল, কান মে বিড়ি মুंह में पान लड़के लेंगे पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान देना पड़ेगा तब भी भारत स्वाधीन होगा, যারা আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল হজ কে লিয়ে পাকিস্তান লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্তান, আজকে তাদের জায়গা পশ্চিমবঙ্গ নয়, তাদের জায়গা ভারতবর্ষ নয়, এটা ধর্মশালা নয়, এটা আমরা ধর্মশালা বানাতে দেব না। আর তার জন্য আপনাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মনে রাখবেন, পশ্চিমবঙ্গের ডেমোগ্রাফি যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বদলে গেছে, শুধুমাত্র বিজেপি নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের তৃণমূল স্তরের যারা কর্মী আছে তাদের আহ্বান জানাচ্ছি, এই ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অতীতের সমস্ত সিআইটিউর নেতৃবৃন্দের কাছে বলছি, সমস্ত বামপন্থী কর্মীদের কাছে বলছি, যারা গতবারে নো ভোট টু বিজেপিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, দয়া করে এবার নো ভোট টু তৃণমূলে অংশগ্রহণ করুন, তৃণমূলের বিসর্জন দিন, না হলে বাংলা বাঁচবে না। তাই 2026-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন। ধন্যবাদ। धन्यवाद सम्मानीय राज्य सभापति के। अभी मैं हमारा प्रिय अभिभावक, प्राक्तन सर्वभारतीय सभापति और सम्मानीय स्वराष्ट्र मंत्री और समवाय मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को अपने मार्गदर्शन रखने के लिए अनुरोध करता हूं। माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी स्वागतम। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है आप लोगों की आवाज को? बंगाल में भाजपा सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकना है या नहीं फेंकना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के भाई मीडिया वाले सेट कर बैठ जाओ जरा, मीडिया वाले सेट कर नीचे बैठ जाओ। अरे बैठते हैं यार, आप लोग मत कहिए, चिंता मत करो। दादा बैठ जाओ जरा, बोलो भारत माता की। आज के इस विशाल कार्यकर्ता समागम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मेरे मित्र श्री समीक भट्टाचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, हम सबके प्रिय
श्री शुभेंदु अधिकारी जी, भारत सरकार में मंत्री श्रीमान शांतनु ठाकुर जी, बहन देवश्री चौधरी जी, श्रीमती लोकेट चटर्जी जी, श्रीमती तनुजा चक्रवर्ती, बैरकपुर के भूतपूर्व सांसद अर्जुन सिंह, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष अमिताभ रॉय जी, श्री प्रबल रहा जी, श्री फाल्गुनी पात्रा जी, श्रीमती बीवा मजमुदार जी, हमारे संगठन की जिम्मेदारी जिन पर है ऐसे संगठन मंत्री श्रीमान अमिताभ चक्रवर्ती जी, और आज इस विशाल कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और मेरे सभी देव तुल्य कार्यकर्ताओं को मेरा राम राम, मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं जब बंगाल में आया हूं तब इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में आया हूं तब सबसे पहले आनंदपुर वेयर हाउस में मोमो फैक्ट्री में लगी हुई आग में मारे गए सभी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो अग्निकांड हुआ है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। जो ये आनंदपुर वेयर हाउस में अग्निकांड हुआ है वो ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के चलते हुआ है। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, मगर मैं शक्ति की भूमि बंगाल को प्रणाम करता हूं। काशीपुर आश्रम, श्री रामकृष्ण सेवा आश्रम, श्री हरिचंद ठाकुर मंदिर और मां बोरो मंदिर की पवित्र माटी को भी प्रणाम कर कर मेरी शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो वर्ष है वंदे मातरम का 150वां साल गिरा है। यही बंगाल की महान भूमि के सुपुत्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आहलेख जगाने के लिए वंदे मातरम की रचना की। और वंदे मातरम की रचना देखते 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 ये गीत आजादी का नारा बन गया। गुरुवर टैगोर ने जब इसको गाया, पूरे भारतवर्ष में आजादी प्राप्त करने वाले सभी लोगों ने वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम किया। और मित्रों, जितने भी लोग आजादी के संघर्ष में शहीद हुए, जितने भी लोग जो भी शहीद फंदे पर लटका दिया गया, वो सभी के मुंह में अंतिम शब्द था वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे देश भर में मनाने का निर्णय किया है। ये फिर से एक बार
बंगाल से उठा हुआ वंदे मातरम का नारा, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक पहुंचाने का निर्णय हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मगर विडंबना देखिए, जिस वंदे मातरम का उद्भव बंगाल की माटी से हुआ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया, वो ही वंदे मातरम पर जब पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, ये ममता बनर्जी के सांसद वंदे मातरम पर चर्चा का विरोध कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, वंदे मातरम का विरोध ये बंगाल की भूमि सहन कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? बंगाल के जन जन तक, हर एक मतदाता तक, हर एक नागरिक तक ये संदेश लेकर जाना है कि वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है। ममता जी, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम का विरोध कर कर आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं कर रही। वंदे मातरम का विरोध कर कर आप बंगाल की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान का विरोध कर रही है। सभी कार्यकर्ता भाई बहन मुझे बताएं, बंगाल की अस्मिता का विरोध बंगाल की जनता सहन कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने के लिए आया हूं कि बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को अगले चुनाव में मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए और यहां एक राष्ट्रभक्तों की सरकार लाइए। मैंने शुरुआत में कहा, आनंदपुर में लगी आग ये कोई हादसा नहीं है। 25 लोगों की जान गई है, 27 लोग लापता है। और ये कांड क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये जो मोमो फैक्ट्री के मालिक है, उसमें किसका पैसा लगा है? ये मोमो फैक्ट्री के मालिक किसके नजदीकी है? किसके साथ विमान में मोमो फैक्ट्री के मालिक विदेश की टूर लगाए हैं और अब तक मोमो फैक्ट्री के मालिक का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? भाइयों बहनों, आज 25 लोग मारे गए, 27 लोग लापता है। मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, अगर ये घुसपैठिए होते तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होता क्या? अरे बंगाल के नागरिक मारे गए हैं, इसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या कर रही हो ममता जी? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और मैं आज यहां से बंगाल की मुख्यमंत्री को मांग कर रहा हूं कि इस हादसे की तटस्थ जांच, न्यायिक जांच करानी चाहिए और सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार लोग जो है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मुझे शुभेंदु जी बता रहे थे, समीक भाई बता रहे थे, परिवार को वो मिलने गए, हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उन पर
पुलिस ने बर्बरता की। मगर ये ममता जी, आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का भ्रष्टाचार अब छिप नहीं सकता। आनंदपुर वेयर हाउस का अग्निकांड, ममता जी चीख चीख कर कहता है कि अग्निकांड में आपके लोग शामिल हैं। 32 घंटे बाद कोई मंत्री वहां पहुंचता है, पर्यावरण का एनओसी नहीं है, वेटलैंड पर गोडाउन बना है, गोडाउन बाहर से बंद था या खुला था? बंद था तो क्यों बंद कर दिया गया था? अंदर लोग जलते रहे, मरते रहे, चीखते रहे, बाहर नहीं आ पाए। और मैं आज ममता जी को कहने आया हूं, पर्दा डालना है तो डालो ममता जी, पर्दा डालना है तो डालो। अप्रैल के बाद भाजपा सरकार आएगी और अग्निकांड के आरोपियों को चुन चुन कर हम जहर की सलाखों के पीछे गए। भाइयों बहनों, हर तरह से बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गया। ये 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है, टाटा बाय बाय कहने का। बंगाल की जनता टीएमसी को कम्युनिस्टों से मुक्ति पाने के लिए आई और टीएमसी ने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने का काम कर दिया। यहां कटमनी, भतीजे की दादागिरी, पुलिस का दुरुपयोग और घुसपैठ एक इंडस्ट्री बना हुआ है। भाइयों बहनों, मैं घुसपैठ के लिए बाद में बात करूंगा, मगर गत समय जब मैं आया, मैंने कहा बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली। मुझे बताओ, आप सभी लोग, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है या नहीं बनने वाली है? अरे जोर से बोलो, बनने वाली है या नहीं बनने वाली? ये ममता बनर्जी मेरा मखौल उड़ा रही थी। ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया, तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या? मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए। विपक्ष के नेता ममता दीदी, अब हमें तो 38% से 45% का जंप लगाना है। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी को कहने आया हूं, 2024 में 3 दशक के बाद पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 24 में ही हमने आंध्र में सरकार बनाई, ओडिशा में पहली बार सरकार बनाई,
अरुणाचल में तीसरी बार सरकार बनाई, 25 में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में 30 साल के बाद सरकार बनाई और 25 का अंत आते आते बिहार में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हुई और 26 में केरल में त्रिवेंद्रम कॉरपोरेशन पहली बार बीजेपी जीता और मुंबई कॉरपोरेशन और सारे महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये ममता दीदी के इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया, सुपड़ा साफ। बंगाल वालों, अब बारी बंगाल की है। मां, माटी और मानुष का नारा देकर ममता बनर्जी सत्ता में आई। यहां पर मां असुरक्षित, महिलाओं की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं। माटी, भूमि घुसपैठिए हजम कर गए हैं और मानुष ममता की सिंडिकेट से परेशान है। मां, माटी और मानुष तीनों की रक्षा करनी है तो वंदे मातरम का सम्मान करने वाला कमल फूल का भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। भाइयों बहनों, बंगाल में इस बार सरकार बनाना सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए जरूरी नहीं। मैं एक कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से बंगाल की जनता को कहने आया हूं, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घुसपैठ चल रही है, पश्चिम बंगाल से हो रही घुसपैठियों की ये फौज केवल पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश के लिए सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल बना है। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये ममता दीदी कहती है, ममता दीदी कहती है कि केंद्र सरकार क्या करे। मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि बाड़ लगाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए ममता बनर्जी आप हमें जगह नहीं दे रही हो, भूमि नहीं दे रही हो, इसके कारण फेंसिंग पूरी नहीं होती। नदी नाले से, दुर्गम पहाड़ों से जो घुसपैठिए आते हैं उनको आपका पटवारी रोकता नहीं है, आपका पुलिस वाला रोकता नहीं है और आप यहां से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उनको पूरे देश भर में भेज रही है। भाइयों बहनों, मैंने पार्लियामेंट में भाषण करा था, तृणमूल कांग्रेस के सांसद इसका विरोध करे थे, मगर कुछ दिन पहले मुझे बड़ा खुशी है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बीएसएफ को सारी भूमि 31/3/26 के पहले देने का ऑर्डर है। हाई कोर्ट ने स्वीकार करा कि ममता बनर्जी भूमि देने में सहयोग नहीं कर रही, घुसपैठिया रोकने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। और मित्रों, ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को मिला है, मगर मैं बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, आप ऐसा मत सोचना कि हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी ममता बनर्जी ये भूमि बीएसएफ को देगी। वो नहीं देगी, क्योंकि उनका वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए। मगर मैं साथ में बंगाल की जनता को ये भी कहना चाहता हूं कि 31/3 को ममता बनर्जी भूमि दे
या न दे, अप्रैल के अंत में भाजपा का मुख्यमंत्री 45 दिन में सारी बाढ़ का काम पूरा कर देगा। ये हमारा बंगाल की जनता से वादा है और हमने कर दिखाया है। आसाम में कांग्रेस की सरकार थी, घुसपैठ नहीं रोकती थी। जैसे ही आसाम में भाजपा सरकार बनी, वहां घुसपैठ रुक गई। गुजरात में भाजपा सरकार है, वहां घुसपैठ नहीं होती। राजस्थान में भाजपा सरकार है, वहां घुसपैठ नहीं होती है। और मैं बंगाल के सम्मानीय नागरिकों को अपील करने आया हूं, लाल सरकार भी बनाई, तृणमूल की हरी सरकार भी बनाई। एक बार भाजपा के केसरिया को मौका दे दो, हम घुसपैठ को रोक कर बताएंगे। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी, ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, इसको भी नहीं मानने वाली है। भाइयों बहनों, ममता के शासन में करप्शन को ममता बनर्जी ने इंस्टीट्यूशनलाइज करा है, संस्थागत किया है और ढेर सारे करप्शन के मुद्दे बने। और ममता बनर्जी कहती है कि करप्शन कहां है। ममता बनर्जी को मैं बताना चाहता हूं, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर निगम भर्ती घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला। ममता बनर्जी जी, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ममता जी, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है, भतीजे की मोह का, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का मोतियाबिंब आपकी आंखों पर हुआ है। बंगाल की जनता मोतिया का ऑपरेशन कर दे, सब दिखाई पड़ेगा। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, बंगाल में भ्रष्टाचार सारी सीमाएं पार कर गया है या नहीं कर गया है? बंगाल की जनता सिंडिकेट से परेशान है या नहीं है? जनता के विकास का रुपया तृणमूल के गुंडों के हाथ में जाता है या नहीं जाता है? ऐसी सरकार चलनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, चलनी चाहिए। भाइयों बहनों, पार्थ चैटर्जी, ज्योति प्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, जीवन कृष्ण साहा, माणिक भट्टाचार्य, अजीत मैती, मदन मित्रा, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष, अराबुल इस्लाम, फिरहाद हकीम, शोभन चैटर्जी, कुणाल घोष, ये सारे लोग जेल में गए हैं। मैं आज अरे यार, बाकी का काम सरकार बना दो, अपने आप पूरा हो जाएगा, आप चिंता मत करिए भाई। भाइयों बहनों, आज मैं ममता जी को चैलेंज देकर जाता हूं, आप में अगर हिम्मत है, आप भ्रष्टाचार का विरोध कर रही है, तो इन लोगों को टिकट न देने की हिम्मत करके बताना, टिकट न देने की। वो नहीं कर पाएगी। अगर इन लोगों को टिकट नहीं दिया, अनुव्रत मंडल, पार्थ चैटर्जी, अजीत मैती, मदन मित्रा, कुंतल घोष, हकीम, इनको टिकट नहीं दिया, तो वो भतीजे का नाम उगल देंगे, भतीजे का नाम उगल देंगे। मगर मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं कि हम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में सारे भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे और एक एक करप्ट व्यक्ति को चुन चुन कर जेल में डालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। हमारे मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी सुबह ही शुभेंदुदा बता रहे थे 12 ट्रेनें नई दी है और लगभग 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया हमने बंगाल सरकार को दिया है। मुझे बताओ भाई, कुछ आपके गांव में आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है? और जोर से बोलो, आया है? ये कहां गया? कहां गया ये सारा पैसा जो नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं? ये तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट के भेंट चढ़ गया है। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, बंगाल के लोगों को वादा कर कर जाता हूं, एक भाजपा सरकार बना दीजिए, मोदी जी 1 रुपया भेजेंगे, पूरा का और पूरा रुपया बंगाल के गांव और गरीब तक पहुंचेगा। कोई कटमनी नहीं। भाइयों बहनों, हम सब कार्यकर्ता हैं। बंगाल ने चुनाव के रेगिंग में ममता बनर्जी की पार्टी ने हमारे 60 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए, कई लोगों के घर जल गए, कई लोग गलत केस में जेल में बंद है। मैं आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को ये कहने आया हूं, हम सब हमारे जो शहीद हुए हैं वो कार्यकर्ता को याद करें और इस चुनाव में आज से लेकर काउंटिंग तक एक एक पल कमल निशान को समर्पित करें और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। मुखर्जी जी इसी बंगाल की माटी से निकले, उन्होंने पश्चिम बंगाल को बचाया, वरना पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा होता। उन्होंने कश्मीर को बचाया, कश्मीर के लिए जान दे दी। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी देश में 21 राज्यों में सरकार बना चुकी है, मगर मैं आपको बताता हूं, मुझे 21 राज्यों से कोई संतोष नहीं है। पूरा देश भर का कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी संतोष के साथ तभी मुस्कुराएंगे जब 22वां राज्य मेरा बंगाल हो जाएगा तब। और यही श्रद्धांजलि होना चाहिए हमारे कार्यकर्ताओं की शहीदगी की, यही कार्यांजलि होना चाहिए हमारे कार्यकर्ताओं के परिवारों को, और यही श्रद्धांजलि होना चाहिए महान श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। और ये करने की जिम्मेदारी हम सब की है। बंगाल में वंदे मातरम के 150वें साल में वंदे मातरम के स्पिरिट को देश भर में पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये हम सबका लक्ष्य होना। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी जी हमारे मतुआ समाज के, नाम शूद्र समाज के लोगों को डरा रही है। शांतनु जी बार बार मुझे फोन कर रहे हैं, मैं सार्वजनिक कार्यक्रम में कहकर जाता हूं, मतुआ समाज और नाम शूद्र समाज को
डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके वोट को ममता बनर्जी छू नहीं सकती। और एसआईआर का विरोध ममता दीदी जितना करना है इतना कर दो। एसआईआर ये न्यायिक तरीके से चल रहा है। हम चुनाव आयोग का समर्थन कर रहे हैं। मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना ही पड़ेगा और जो बचे कुचे रह जाएंगे वो भाजपा का सीएम आकर निकाल देगा। मित्रों, भाजपा का सीएम आकर निकाल देगा। मुझे बताओ, आप सभी लोग यहां कमल फूल की सरकार बनाने के लिए आप सभी लोग तैयार है क्या? अरे ऐसे नहीं, ममता बनर्जी के बहरे कान तक जाना चाहिए। तैयार है क्या? ममता की सरकार को बदलेंगे। अरे बदलना नहीं है, मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है। और यहां पर ऐसी सरकार बनानी है जो घुसपैठिया का मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, सिंडिकेट मुक्त, महिलाओं की सुरक्षा करने वाली, उद्योगों को आगे बढ़ाने वाली। और कवि गुरु रविंद्रनाथ, विवेकानंद जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के स्वप्न का सोनार बांग्ला बनाए, ऐसी सरकार बनानी है। तो मित्रों, अगर आप सभी लोग सहमत हैं तो दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। রাষ্ট্রপতিকে আমরা এরপরে আপনাদেরকে এই বিপুল সংখ্যায় আসার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই। একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই যতগুলো সংস্থা আমাদের এখানে এই কম সংখ্যক দিনের মধ্যে এই সভাটাকে সম্পন্ন করার জন্য এবং ব্যবস্থিত করার জন্য সহযোগিতা করেছেন। প্রত্যেককে আমরা আমাদের মঞ্চের তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। অমিত জি জিন্দাবাদ, অমিত জি জিন্দাবাদ, অমিত শাহ জিন্দাবাদ, অমিত শাহ জিন্দাবাদ। भारत माता की, भारत माता की। প্রতিবাদ করলে বলে বিরোধী ধরে